to one and all. A very happy and blessed Sunday to you all. It is indeed our pleasure to introduce to you all our today's speaker. Dr. Shivraj Mahendra is the Assistant Professor of the World Christianity at New Theological College, Dehradun. He is also the editor of History at Asian American Theological Forum and also the author of A Christian Response to Pornography and Other Books. The topic of today's sermon is Joseph, a role model. We hope and pray that you all will be blessed by today's sharing. May God bless us all. हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अजोड़ नाम में हम आप सबों का अभिवादन करते हैं। आप सबों को रविवार का सलाम। आज हमें बहुत ही खुशी हो रही है आज के हमारे प्रचारक से आपका परिचय करवाने के लिए। उनका नाम है डॉक्टर शिवराज महेंद्र। वे वर्ल्ड क्रिश्चियनिटी एनटीसी देहरादून के असिस्टेंट प्रोफेसर है। उसके साथ साथ वे हिस्ट्री एट एशियन अमेरिकन थियोलॉजिकल फोरम के एडिटर भी है। उन्होंने किताब भी लिखी है और वे हमारे मध्य में आज यूसुफ के जीवन में से बांटने वाले हैं। हम आशा और प्रार्थना रखते हैं कि हमारा समय आशीषित रहेगा। आमीन। Praise the Lord. It is such a joy to meet you online and share the word of God with you today. प्रभु की स्तुति हो। ये कितना आनंद की बात है कि हम फिर से एक बार ऑनलाइन मिलकर प्रभु के वचनों पर मनन करेंगे। I am thankful to Joel for this opportunity to share to the daunting pulpit, and this is such an opportunity for me. और फिर से एक बार मैं डॉन्टलेस की टीम का भी आभारी हूँ कि प्रभु का वचन बांटने का अवसर मुझे प्रदान किया गया। I believe that the Lord will bless us today. मैं ऐसे मानता हूँ कि परमेश्वर हमें आज आशीषित करेगा, Because His word is living word and our God is living God and He is going to bless us. क्योंकि उनका वचन जो है वो जीवित वचन है। हमारा परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर है और वो हमें आशीष देगा। So let us start with prayer. तो आइए हम प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। Dear Lord, we thank you for this opportunity you have given us to come in your presence. We thank you, Lord, because your word is powerful and it is able to transform our life. Today, as we sit in your presence, today as we plan to hear from your word, Lord, we pray that you will bless us, Lord, that you will open our hearts, Lord, that you will encourage us through your word, Lord, and that you will empower us through your Holy Spirit to live a victorious life in a testing and troublesome time like this. We believe that your Holy Spirit is continuing to work in our lives, and we commit ourselves to the guidance of your word. We give rest of the time in your care, Lord, and we pray in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Today, I want to share an inspirational story. आज मैं आपके मध्य में एक बहुत ही प्रेरणादायक एक कहानी को आपके मध्य में बांटना चाहूंगा। And this story comes from the very first book of the Bible. और ये जो कहानी है ये बाइबल में के पहले पुस्तक में से आती है। And there is a famous character in that book which has always been very encouraging to me. और उस पुस्तक में एक बहुत ही प्रख्यात प्रचलित ऐसे चारित्र का भी वर्णन किया गया है जो मेरे लिए हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत बना रहा। And that is Joseph's story. और ये तो यूसुफ की कहानी है। And Joseph's story I have titled From Tragedy to Victory, Joseph our role model. From tragedy to victory. और आज के जो शीर्षक आज का जो वचन का जो शीर्षक है वो ये है कि बुरी परिस्थिति से विजयवंत होना। एक यूसुफ एक हमारे लिए एक रोल मॉडल मतलब कि हमारे लिए एक नमूनेदायक व्यक्ति। So with that title, I want to invite your attention and as we travel through the Word of God. तो उसी शीर्षक के साथ मैं चाहता हूं कि आप वचनों की तरफ जाएं और वचनों के ऊपर अपना मनन और ध्यान करें। In our journey of life, in times of hopelessness and in times of trouble,
we are always inspired by the stories that have happy ending. और हमारे जीवनों के अंदर जब भी हम मुश्किल समयों में से जाते हैं, आशाहीन परिस्थितियों में से गुजरते हैं, तब हमें ऐसी कहानियां पसंद है जिसका अंत भला होता है। And when you read Joseph's story again and again, I read it again and again, and it's so empowering, so encouraging that you cannot put it aside in times like this. और ऐसे परिस्थितियों के अंदर जब भी यूसुफ की कहानी पढ़ते हैं, बारंबार जब उसे पढ़ते हैं, मैं खुद उसे बारंबार पढ़ता हूँ, और उससे जो प्रेरणा मिलती है, उससे जो सामर्थ्य मिलता है, उसको हम कभी नकार नहीं सकते। So Joseph appears like a very, very encouraging role model for us today. और यूसुफ आज के समय में, आज की परिस्थिति के अंदर हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा प्रेरणा का और बहुत ही ज्यादा सामर्थ्य का एक नमूना, एक उदाहरण हमारे सामने है। So the three questions that I want to keep before us are these. और 3 प्रश्न जो मैं हमारे सामने रखना चाहता हूं वो इस प्रकार से है। Question number 1. How did Joseph survive the many crises in his life? सबसे पहला प्रश्न है, यूसुफ अपने जीवन की हर एक चढ़ती पड़ती में कैसे जिंदा रहा, कैसे वो चला रहा। Question number 2. What was the secret of his victory and success? उसके विजय का और उसकी सफलता का रहस्य क्या था, ये दूसरा प्रश्न है। And the third and last question. Can such happy endings happen today? और तीसरा और आखिरी प्रश्न है कि क्या इस प्रकार के भले अंत आज के समय में भी संभव है क्या? So with these questions in our mind, we will continue our reflection today. और इन प्रश्नों को मद्देनजर रखते हुए हम हमारे आज के मनन में आगे बढ़ेंगे। And then let me also give you a quotation from a famous writer. तो एक बहुत ही प्रचलित ऐसे लेखक का एक व्याख्यान मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। John Maxwell, he writes in the Maxwell Leadership Bible this sentence. जॉन मैक्सवेल लीडरशिप बाइबल के अंदर इस प्रकार से लिखते हैं। He says, problems never paralyze great leaders. Problems never paralyze great leaders. समस्याएं जो होती है वो महान अगुवों को कभी भी रोक नहीं सकती है। They always know that there is a solution to the problem. उन्हें हमेशा पता होता है कि हर एक समस्या का हल होता है। And this is a beautiful summary of what happens in Joseph's life. और यूसुफ के जीवन को अगर संक्षिप्त में बताना हो तो इस व्याख्यान से हम उसको दर्शा सकते हैं। So all my young friends, old friends, everybody who is listening to this message today will realize that we are living in a time of problems. तो मेरे प्रत्येक युवान मित्र, वृद्ध मित्र, जो भी संदेश को सुन रहे, हर एक को मैं बताना चाहूंगा कि हम जो है एक ऐसे समय में जी रहे हैं जो बहुत ही मुश्किल समय है। But it is also important to know that there are solutions to these problems that we are facing today. परंतु महत्वपूर्ण ये भी है जानना कि जिन जिन परिस्थितियों में से, जिन जिन मुश्किलों में से हम गुजर रहे, हर एक मुश्किलों का हल है। How did Joseph, who is our example, who is our role model today, how did he go about his own challenges? और यूसुफ जो हमारे लिए आज एक नमूनेदायक व्यक्ति है, वो अपने जीवन के अंदर किस प्रकार से अलग अलग उलझनों में से, मुश्किलों में से गुजरा। What was Lord doing in his life? और परमेश्वर प्रभु जो है वो उसके जीवन में क्या क्या कर रहा था। And what is the Lord doing in our life? और परमेश्वर हमारे जीवन में क्या क्या कर रहा है। And how can we understand those things today? और आज के समय में उन चीजों को हम किस तरह से समझ पाएंगे। There are 5 keys to understanding this whole situation. और इस पूरी परिस्थिति को समझने के लिए 5 चाबियों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। There are many, but we will just talk about the 5.
बहुत सारी अनेक हो सकती है, परंतु हम 5 के बारे में बात करने वाले हैं आज। And this is exclusively coming from Joseph's story. और ये तो खास रूप से यूसुफ की कहानी से आती है। So the very first lesson that we learned from Joseph's life is this. सबसे पहले ही जो सीख हम यूसुफ के जीवन से सीखते हैं वो ये है। And this is the key to responding to the challenges that we are facing, the challenges that we are surrounded with. और जिन मुश्किलों से, परेशानियों से हम अब जब घिरे हुए हैं, उसमें से निकलने की एक शायद चाबी हो सकती है। So open with me to the book of Genesis, chapter 37. तो आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37वां अध्याय खोलेंगे। And we read in verses 5 and 6. और उसमें से 5 और 6 पदों को हम पढ़ेंगे। Just the beginnings of this verse, and verse 5, let us see, it says, Joseph had a dream. और वहां पर लिखा है कि यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। Joseph had a dream. यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। Now we will stop here for a second and chew on this word. तो आइए हम यहाँ पर कुछ मिनटों के लिए, कुछ चंद सेकंडों के लिए यहाँ पर रुकेंगे और ये जो शब्द, ये जो वाक्य हमने पढ़ा है, उसको हम ज्यादा गौर से देखने का प्रयत्न करेंगे। Joseph had a dream. यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। He had a significant vision from the Lord. और एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा दर्शन उसने परमेश्वर से देखा। God was showing him something. और परमेश्वर उनको कुछ दिखा रहा था। As a young man, Joseph was aware that God had something special for him. और एक युवान व्यक्ति होने के नाते यूसुफ को ये बात पता थी, इस बात के बारे में वो जागृत था कि परमेश्वर उसके द्वारा कुछ महान करने वाला है। From the very beginning, from the dreams that Joseph was seeing, he knew that there is something special about it. और जो शुरुआत से ही वो जिस प्रकार के स्वप्न देख रहा था, उसे पक्का पता था कि उसके बारे में कुछ तो खास है। And he knew that this was definitely from God. और उसे ये भी पता था कि ये निश्चित रूप से परमेश्वर से ही है। So the question for you and me today is, what is our situation? तो मेरे और आपके लिए जो प्रश्न है वो ये है कि हमारी परिस्थिति क्या है? Do we have a dream? क्या हमारा स्वप्न है? Do we see visions? क्या हम दर्शनों को देखते हैं? Is there anything that makes us feel that this could be from God? क्या कुछ भी ऐसा है हमारे जीवन में जिसको देखकर या फिर महसूस कर हम कह सके कि ये परमेश्वर से है? Because this is the key to face the problem. क्योंकि यही तो परिस्थिति का सामना करने के लिए एक चाबी है। This is the solution, one of the solutions to face the problem. और हर एक मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने के लिए ये एक हल है। Because if we have a special vision, if we have a dream from the Lord, we are connected with God and we can know the will of God. और क्योंकि यदि हमको दर्शन होते हैं, यदि हम परमेश्वर के स्वप्न देखते हैं, तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं और एक संबंध है हमारा और परमेश्वर का। And God is in control and He can show us things as how to go about it. और परमेश्वर जो है यहाँ पर हम दिखाते हैं कि परमेश्वर के नियंत्रण में ही सारी परिस्थितियां हैं और वो हमें दिखाएगा और सिखाएगा हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। So let us ask God so that we may have dream from Him, we may have visions from Him as to how to live our life today. तो आइए हम परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से पूछे कि वो हमें स्वप्न दिखाए, वो हमें दर्शन दे कि हम किस प्रकार से इस परिस्थितियों में जिए और आगे बढ़े। Lesson number 2. दूसरी सीख, how do you get the dream? How do you get the vision from the Lord? हम किस प्रकार से परमेश्वर से उस प्रकार का दर्शन या फिर स्वप्न देख पाएंगे? In lesson number 2, we learned that it comes through a relationship. दूसरी सीख में हम ये सीखेंगे कि ये तो एक संबंध से उत्पन्न होता है। Unless there is a relationship, we cannot receive the message.
जब तक कोई संबंध स्थापित नहीं होता है तब तक कोई भी प्रकार का संदेश नहीं मिलेगा। If you are not connected, you cannot know what is going on the other person's mind. जब तक आप जुड़े हुए ना हो तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि सामने वाली व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। So we read in the word of God that Joseph was intimately connected with God. तो हम प्रभु के वचनों में पढ़ते हैं कि यूसुफ जो था वो बहुत ही परमेश्वर के साथ बहुत ही एक निकटता का निजी संबंध में जुड़ा हुआ था। And the word says that the Lord was with Joseph. और फिर वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा हमेशा यूसुफ के साथ था। Let us read that in the word of God, Genesis chapter 39. तो आइए हम उत्पत्ति 39 को पढ़ेंगे। Verse 2. दूसरा पद। It says, the Lord was with Joseph and he prospered. और वहां पर लिखा है कि यहोवा उसके साथ था और वो सफल हुआ। You see, that is a powerful message. तो आप देखिए ये बहुत ही सामर्थ्यवान संदेश है। Joseph is not succeeding because of his own ability. यूसुफ जो है वो खुद की सक्षमता से सफलता को प्राप्त नहीं कर रहा था। It's not about his qualification, it's not about his talent right now. उसकी सब सिद्धियों के ऊपर या फिर उसके सब तालंतों के ऊपर अभी यहाँ पर निर्भर नहीं है कुछ भी। It is about his relationship. God was with him and that was ensuring his success. और ये तो अभी संबंधों के ऊपर निर्भर है कि परमेश्वर यहोवा उनके साथ था और इसकी वजह से वो सफल हुआ। And we know that the Lord is near to those who seek him. और हमें ये पता है कि जो लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं परमेश्वर उनके निकट रहते हैं। Word of God also says that my people perish because of the lack of knowledge. और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मेरे लोग जो है वो उनका नाश होता है क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं है, उनमें वो बुद्धि नहीं है। People perish. People are destroyed. They're losing everything. उन लोगों का नाश होता है, वो अपने सारी संपत्ति सारी चीजों को गुमा देते हैं। Because they don't know. क्योंकि वे जानते नहीं हैं। Because they don't know the will of God. क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते। Because they don't have the word of God. क्योंकि उनके पास प्रभु का वचन नहीं है। They don't have the vision from God, dream from God. परमेश्वर के द्वारा दर्शन नहीं है, परमेश्वर के द्वारा स्वप्न नहीं है। And remember, Joseph had a vision. और याद रखिए कि यूसुफ के पास तो एक दर्शन था। And that is the first thing we talked about. Joseph had a vision. और सबसे पहली बात हमने यही देखी थी कि यूसुफ को एक दर्शन मिला था। And the second thing, he had a vision because he had a relationship with God. और दूसरी बात हमने देखी कि उसने दर्शन इसीलिए देखा क्योंकि उसका परमेश्वर के साथ एक संबंध था। So what we learn from here? तो हम इससे क्या सीखते हैं? A vision, a dream requires a relationship. एक दर्शन और एक स्वप्न पाने के लिए एक रिश्ते की, एक संबंध की जरूरत है। If you don't have relationship, there is no communication. यदि आपका संबंध या फिर रिश्ता ना हो तब वहां पर कोई भी प्रकार का संचार नहीं होगा। And if there is no communication, you don't get the message. यदि संचार नहीं होगा तो कोई भी प्रकार का संदेश मिलेगा ही नहीं। So the question is, do we have intimate relationship with God? तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि क्या हमारा परमेश्वर के साथ एक निकटतम संबंध है या नहीं? If we have relationship, we will definitely have a vision from him. यदि हमारा संबंध होगा तो निश्चित रूप से उनसे दर्शन तो हमें होंगे ही। So the story of Joseph very clearly invites us to seek relationship with God, to build relationship with God, so we can have his vision. तो इसीलिए यूसुफ की ये जो कहानी हमें न्योता देती है कि हम परमेश्वर को ढूंढे, परमेश्वर के साथ एक संबंध को बांधे ताकि हमें दर्शन हो, उनके स्वप्न हमें हो। And we also face our challenges through a strong character. और हम हमारे जो मुसीबतें हैं उनका सामना हम एक मजबूत चारित्र से भी करते हैं। And that strong character is the third key
to how we handle our challenges. और ये जो मजबूत चारित्र है, ये तीसरी चाबी है कि हम हमारी मुसीबतों का सामना किस प्रकार कर पाएंगे। In the same chapter, Genesis 39, we read in verses 7 and 8. उत्पत्ति 39, 7 और 8 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं About how we read about how Joseph faced a serious test in his life. और हम वहां पर पढ़ते हैं कि यूसुफ ने किस प्रकार एक बहुत ही गंभीर परीक्षा का सामना किया। He had an opportunity to indulge in sin. और उसके पास ये ऐसा एक अवसर आया था कि जिसके अंदर वो पाप में डूब सकता था। So his master's wife was interested in him. तो वहां पर उसकी मालिक की जो पत्नी थी वो इसमें रस धराती थी। And he could have just fallen into that temptation, maybe seeking favor or something. और वो वहां पर कुछ भी अच्छी बात को प्राप्त करने के लिए लालच में आके शायद उस पाप में गिर भी सकता था, उस परीक्षण में गिर भी सकता था। But you see how a man of God responds to that situation. परंतु आप यहाँ पर देखिए कि प्रभु का एक इंसान, प्रभु का बंदा किस प्रकार ऐसी परिस्थितियों का प्रतिसाद देता है। Joseph knew his identity, he knew who he was. यूसुफ को पता थी उसकी पहचान क्या है, यूसुफ जानता था कि वो कौन है। He knew what was his responsibility and role in that house. और उस घर में उसकी जवाबदारी, जिम्मेदारी और उसकी भूमिका क्या है, वो उस बहुत अच्छे से जानता था वो। But most important, पर सबसे महत्वपूर्ण बात, he knew his limits. उसे उसकी सरहदें पता थी। He knew how far he can go. उसे पता था वो कितने दूर तक जा सकता है। He knew where he was safe and where he's gonna be not safe, and he knew where it will be right and where he will go wrong. उसे पता था वो कहां तक सुरक्षित है और कहां तक उस पर खतरा है और क्या सही है और क्या गलत है, उसका उसको पता था। Praise God for such knowledge. परमेश्वर की स्तुति हो ऐसे ज्ञान के लिए। Praise God for this kind of awareness that can save us. और प्रभु की स्तुति हो इस प्रकार की जागृति के लिए जो हमें बचा सकती है। So what happened with Joseph with this knowledge? और यूसुफ का इस ज्ञान के द्वारा क्या हुआ फिर आगे? He refused to sin. और उसने वहां पर पाप करने से नकार किया। He just ran away. वो वहां से भाग गया। And what happens when you respond to some challenges like that? और कुछ कुछ चुनौतियों का जब इस प्रकार आप प्रतिसाद देते हैं तो उससे क्या होता है? So with each new trial, with each new challenge, Joseph grew stronger and stronger in his character. और इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि यूसुफ जो है वो आने वाले हर एक परीक्षाओं से पार होते हुए, हर एक बातों से और चुनौतियों से पार होते हुए अपने चारित्र में ज्यादा से ज्यादा मजबूत होता गया। And Joseph was growing in humility, Joseph was growing in patience, and he was growing in perseverance. और वहां पर जो यूसुफ था वो दृढ़ता में, यूसुफ था वो एक प्रकार की अपनी नम्रता में, यूसुफ अपनी धीरज में वो था, वो आगे बढ़ता रहा था और वो बढ़ रहा था वहां पर। And with that growth came the character. और उस बढ़ोतरी से एक अच्छा चारित्र उत्पन्न हुआ। Character of a man of God who will never sin. और एक ऐसा चारित्र परमेश्वर के बंदे का जो कभी पाप नहीं करेगा। My friends, मेरे प्यारे मित्रों, how are we doing today? हम आज के समय में किस प्रकार जी रहे हैं? The internet has offered us so much. और इस इंटरनेट ने तो हमें बहुत कुछ दे दिया है। There is lot of stuff that we don't need. बहुत सारी ऐसी ना जरूरती चीजें भी है। What about pornography? और अश्लील चलचित्रों का क्या? How is that not a temptation? ये किस प्रकार से एक परीक्षण नहीं है? How can that not be a sin? ये पाप कैसे नहीं हो सकता है? Think about it. आप सोचिए इसके बारे में एक बार। I ended up writing a book on it. और मैंने तो इसके ऊपर एक किताब तक लिख दी। Because I found that problem
even among seminary students. क्योंकि मैंने ऐसी समस्याओं को सेमिनरी में पढ़ते हुए विद्यार्थियों में भी देखी। There are challenges that have entered most sacred institutions in our life. और हमारे जीवन के अंदर जो सबसे पवित्र ऐसे कुछ पहलू है, उसके अंदर भी ऐसे प्रकार के परीक्षण घुस चुके हैं अभी। So how do we handle these temptations, my friend? तो फिर ऐसे परीक्षणों का सामना हम हमारे जीवन में कैसे करें मेरे प्यारे मित्रों? The temptation is right in our hand, in our cell phones. वो परीक्षण तो हमारे हाथों में, हमारे मोबाइल में है। How do you run away from that? अब वहां से कैसे भागोगे? How will you respond? आप किस प्रकार प्रतिसाद देंगे? How will you build your character? किस प्रकार आप अपने चारित्र को बांधेंगे? The Lord of Joseph is with us. यूसुफ का परमेश्वर हमारे साथ है। His Holy Spirit will help us to lead a holy life. और उनका पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करेगा कि हम एक पवित्र जीवन जिए। To run from sin and filth and to aspire for holiness. और पाप और गंदगी से दूर भागते हुए पवित्रता की ओर उसके पीछे पड़ते हुए। Joseph knew this. यूसुफ को यह पता था। The Lord is holy and he wants his people to be holy. परमेश्वर जो है वो पवित्र है और वो चाहता है कि उसके लोग जो उसको बचते हैं वो भी पवित्र बने। There is no strong character without the holiness. और पवित्रता के अलावा कोई मजबूत चारित्र संभव ही नहीं है। There is no Christian leadership, genuine Christian leadership without holiness. और कोई भी प्रकार की सच्ची मसीही अगुवाई पवित्रता के अलावा हो ही नहीं सकती है। And no one can see God without holiness. और पवित्रता के अलावा कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। And with that we move to our next point, fourth point. और उसके बाद अभी हम हमारे चौथी चाबी की ओर जाएंगे। This is something that builds onto a character. और ये एक ऐसी चीज है जो एक चारित्र के ऊपर बांधी जाती है। This is experience. ये अनुभव है। So Joseph has a vision. यहाँ पर यूसुफ को एक दर्शन होता है। Then he has a relationship with God. दर्शन इसलिए होता है क्योंकि उसका यहोवा के साथ एक संबंध है। Then we see he has a strong character because of the vision and the relationship. और उस दर्शन की वजह से और उस संबंध और रिश्ते की वजह से उसका एक मजबूत चारित्र हम देखते हैं। And with that he has gained experience in his life. और उसके साथ साथ आगे चलते हुए उसने अपने जीवन में अनुभवों को कमाया है। Joseph has become a mature leader. अभी यहाँ पर यूसुफ जो है वो बहुत ही परिपक्व अगुवा बन चुका है। An experienced leader in spite of all the bad circumstances. और हर एक बुरी परिस्थितियों के सामने भी एक अनुभवी ऐसा अगुवा वो खड़ा है। And we read in Genesis 39:22. और उत्पत्ति 39 और 32 में हम पढ़ते हैं। 22 please, verse 22. 22 में हम पढ़ते हैं। He says, so the warden put Joseph in charge of all those held in the prison, and he was made responsible for all that was done there. इसीलिए 39:22. इसीलिए बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। You see what is happening here? यहाँ पे आप देख रहे क्या हो रहा है? Joseph has become in charge of the prisoners. यहाँ पर यूसुफ तो सब कारागार वासियों का एक प्रकार का नेता बन चुका है, उनको आज्ञा देने वाला बन चुका है। And don't forget, he himself is in the prison. आप ये याद भी रखिए कि वो खुद भी वहां पर बंदीवान है। Now that is interesting. ये बहुत ही रसप्रद बात है।
And it connects to many of us so much in so many ways. और ये हम में से अनेक ऐसे लोगों से ये बहुत सारी रीति से जुड़ी हुई बात है. You know, we are like the people who are struggling themselves and trying to help others. हम इस प्रकार के लोग हैं जो खुद भी डूब रहे हैं परंतु दूसरों को बचाना चाहते हैं. You see, that is how it comes out in the whole story, and it is so powerful and encouraging. और इस पूरी कहानी में इसी प्रकार से वो आता है और कितना प्रेरणादायक, कितना उत्तेजनदायक बात है ये. And that is where you realize that God's plan is at work in our life. और यहीं पर आप समझ पाते हैं कि परमेश्वर का जो आयोजन है वो हमारे जीवन में कार्यरत है. Because we know that when we were yet sinners, Christ died for us. क्योंकि हमें पता है कि हम तो अभी पापी ही थे, तभी यीशु मसीह जो है वो सही समय पर हमारे लिए मारा गया. So while we were yet sinners, while we were yet in prison, the Lord made a deliverance possible for us. और हम तो अभी पापी थे, हम तो अभी बंदीवान थे पाप के, और वहां पर तो यीशु मसीह ने हमारे लिए छुटकारा तैयार कर दिया. And this happens because we are seeking God. और ये इसीलिए होता है क्योंकि हम परमेश्वर को खोजते हैं. It happened with Joseph because he was seeking God. ये यूसुफ के साथ हुआ क्योंकि यूसुफ परमेश्वर को खोजता था. He was running away from sin, running close to God. वो पाप से दूर भागता था, परमेश्वर के निकट भागता था. And that practical experience was building in his life. और ये व्यवहारू अनुभव उसके जीवन को बांध रहा था. In his journey of life, even his jailer realized this and gave him the leadership role. और उसके जीवन यात्रा के अंदर ये अनुभव जो है उस कारावास के जो मुख्य व्यक्ति था उसको भी हुआ और उसको वहां पर वो जिम्मेदारी दी गई. So you gain leadership even when you are struggling. तो आपके जीवन में आप भले ही मुश्किलों का सामना कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, फिर भी आपको अगुवाई देने का अवसर प्रदान होता है. And that is a sign of maturing leader. और ये तो एक परिपक्व अगुवे का एक चिन्ह है. So Joseph is growing in leadership ability and all his skills so much that he is able to become in charge while still in prison. और वहां पर यूसुफ जो है वो अपने अनुभवों में आगे बढ़ता है, उसके अंदर जिसके जो भी तालंत थे उसमें वो आगे बढ़ता है, इतना आगे बढ़ता है कि खुद बंदीवान होने के नाते बंदीवानों का वो नेता बन जाता है, उनके ऊपर वो आज्ञा देने वाला बन जाता है. This is an amazing story. यह बहुत ही अद्भुत कहानी है. You and I still feel like we are in bondage of some things. मुझे और आपको क्या अभी भी ऐसा लग रहा है कि हम किसी बात के बंदीवान हैं? Maybe. शायद हो सकता है. But let's not forget. परंतु आइए हम ये कभी ना भूलें that if we are connected with God, things can change. कि यदि हम परमेश्वर से अगर जुड़े हुए रहे तो शायद परिस्थितियां बदल सकती है. Even in our weakness, God can use us. हमारी कमजोरी में भी परमेश्वर हमारा उपयोग करेगा. But the question is, are we maturing in the Lord? परंतु प्रश्न हमारे सामने ये है कि क्या हम परमेश्वर में परिपक्व हो रहे हैं? Are we going closer to God or are we going away from God? That will decide it. क्या हम परमेश्वर के पास भाग रहे हैं या फिर परमेश्वर से भाग रहे हैं? ये इस चीज का निर्णय करेगा. That will build our experience. और ये हमारे अनुभवों को बांधेगा. That will define our leadership. और ये हमारी अगुवाई की परिभाषा देगा. So with that, we now come to the fifth and the last point. और फिर इसको बात करते हुए हम पांचवी और आखिरी चाबी की ओर आगे बढ़ रहे हैं. And that is a special gift. और ये तो बहुत ही खास, a special gift or blessing from God. ये एक खास भेंट या फिर परमेश्वर की तरफ से एक आशीष है. So in Joseph's life, we see first he had a dream. तो यूसुफ के जीवन में सबसे पहले हमने देखा कि उसको एक स्वप्न हुआ. We know that he had that dream because of his relationship with God. हमें यह पता है कि उसने ये स्वप्न या दर्शन इसीलिए देखा क्योंकि उसका परमेश्वर के साथ एक संबंध था. And we know that because of that relationship, he grew in a very strong character. और फिर ये दर्शन और ये संबंध की वजह से वो बहुत ही मजबूत ऐसा चारित्र में आगे बढ़ा. वो
And because of that strong character, in all this experience he had, made him a mature leader. और फिर इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसके जीवन में जो भी उसने अनुभव किए, इसकी वजह से वो बहुत ही एक परिपक्व अगुवा बना. And with that, we come to finally realize that he had a very special gift from the Lord. और फिर इसके बाद हमें ये बहुत ही ध्यान से हम ये जान पाते हैं कि परमेश्वर की ओर से बहुत ही खास ऐसी भेंट उसे मिली. So in Genesis 41, उत्पत्ति 41 के अंदर we see in verses 15 and 16, 15 और 16 पद में हम देखते हैं, Pharaoh said to Joseph, I had a dream and no one can interpret it, but I have heard it said of you that when you hear a dream, you can interpret it. And then in verse 16, Joseph replied, I cannot do it, but God will. God will give Pharaoh the answer his desire. So the word of God tells that Joseph had the ability to interpret dreams. और वहां पर उत्पत्ति 41, 15 और 16 में इस प्रकार लिखा है, फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं है, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बताता है. यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा. इसका मतलब यहाँ पर यह है कि यूसुफ के पास ऐसा तालंत भी था कि वो दूसरे स्वप्नों का अनुवाद भी करता था. Now that is a very special dream. I wish I had. That's a very special gift. I wish I had that gift. और ये तो बहुत ही खास भेंट है. मैं भी ऐसी आशा रखता हूँ कि मेरे पास भी यदि ऐसी भेंट हो. What is your talent? What is your gift from the Lord? परमेश्वर की ओर से आपकी भेंट या फिर आपका तालंत क्या है? You see, because of Joseph's special ability, this special gift, he made a huge difference in the lives of other people. यहाँ पे देखिए कि यूसुफ की इस तालंत और इस भेंट की वजह से अन्य ऐसे जीवनों के अंदर, अन्य ऐसे लोगों के अंदर बहुत ही जोरदार ऐसा प्रभाव उसका पड़ा. His influence was not only his own family, but also in the prison and also in the palace. और यहाँ पर हम देखें कि उसका प्रभाव ना ही केवल उसके परिवार में हुआ, ना ही केवल उस बंदीवास की जगह में हुआ, परंतु महल तक उसका प्रभाव हुआ. What is the talent today you and I have that God can use out in the street and up in the place or government offices? What is the kind of gift that the Lord has blessed you today? तो फिर आज मेरे और आपके पास ऐसा कौन सी तालंत है, ऐसा कौन सा खास भेंट से परमेश्वर ने हमें नवाजा है कि हम सड़क से लेकर बड़ी से उच्च कक्षा के कार्यालय के अंदर उस भेंट का उपयोग करें और दूसरों को आशीष करें. Joseph had a special gift from the Lord. यूसुफ के पास परमेश्वर की ओर से बहुत ही खास भेंट थी. We can also have. हमारे पास भी हो सकती है. God always blesses everyone with something special. परमेश्वर हमेशा हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ खास चीजों से नवाजता है. And if we seek after God, He will bless us and He will help us use our talent for His glory. और यदि हम परमेश्वर को खोजेंगे तो हमें मदद करेंगे और उसकी महिमा के लिए हमारे तालंतों का वो उपयोग करेंगे. Especially in times of crisis like this. और खास तौर पे इस प्रकार की महामारी की परिस्थितियों के अंदर Joseph kind of personality is what we need. और यूसुफ के जैसा चरित्र, यूसुफ का जैसा व्यक्तित्व हमें जरूरत है. That is the kind of role model we need to follow. और उसी प्रकार का एक प्रकार का उदाहरण का जीवन हमें आगे उसके पीछे में चलना चाहिए. Have the vision, have the clarity in your life. अपने जीवन के अंदर दर्शन, अपने जीवन के अंदर स्पष्टता रखिए. Have relationship with God. परमेश्वर के साथ संबंध रखिए. Build your strong character. अपना मजबूत चारित्र बांधिए. Build on your experience and mature in the God. और अपने अनुभवों के आधार पर परमेश्वर में आप परिपक्व बनिए. And use your gift to bless others. और अपनी भेंटों का, अपने तालंतों का दूसरों को आशीष देने के लिए उपयोग कीजिए. Do your best. अपने से हो सके वैसे श्रेष्ठ कीजिए. If you are a medical worker,
do your best. अगर आप वैद्यकीय क्षेत्र में हैं तो अपना श्रेष्ठ कीजिए। If you are a preacher, preach the word of God. अगर आप एक प्रचारक हैं तो प्रभु के वचन का प्रचार कीजिए। If you are a teacher, be a blessing to your students. और अगर आप शिक्षक हैं तो अपने विद्यार्थियों को लेकर आशीष का कारण बनिए। If you are a pastor, be a great pastor. और अगर एक पासवान है तो एक महान पासवान बनिए। Whoever you are, आप जो कोई भी हो, whatever you are called to do, जो भी आपको करने के लिए बुलाया गया है, do it like Joseph. यूसुफ के समान कीजिए। Joseph knew what God wanted from his life, and he knew things in advance, and he was the best leader I know. यूसुफ जो है अपने जीवन में परमेश्वर को जानता था, वो जानता था परमेश्वर क्या करेगा, और यूसुफ ऐसा श्रेष्ठ अगुवा था जिसे मैं जानता हूँ। How is our life today? हमारा जीवन आज कैसा है? How are you responding to the crisis in your life? और अपने जीवन के मुसीबतों का प्रतिफल आप किस प्रकार से दे रहे हैं? Are you growing with hope and confidence, using your gifts for the glory of God? क्या विश्वास और आशा के साथ अपने बेटों का परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं? Or are you discouraged or disappointed? या फिर आप हताश या निराश हैं? My friend, I want to tell you, मेरे मित्रों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं आज, as a people of God, परमेश्वर के लोग होने के नाते, we have nothing to be hopeless, we have nothing to be afraid of, we have nothing to be fearful about. ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हमें डरना चाहिए, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हमें आशाहीन होना चाहिए। Everything will work for good for those who love God and were called according to His purpose. जो भी परमेश्वर के हेतु से और परमेश्वर के प्रेम से बुलाए गए हैं, उनके लिए अंत में सब हितकारक होगा। All we need is to have a vision like Joseph. हमें चाहिए वो ये है कि हम यूसुफ के समान दर्शन देखें, Relationship like Joseph. और परमेश्वर के साथ संबंध को बनाए यूसुफ के समान। Character like Joseph. यूसुफ के समान एक चारित्र की जरूरत है, And blessing like Joseph. और यूसुफ के समान आशीष की जरूरत है। May the Lord help us. परमेश्वर हमें मदद करे। Let us pray. प्रार्थना। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि यूसुफ के जीवन से आपने हमसे बात किया। प्रभु, हम ऐसे लोग हैं जिनके पास दर्शन तो है पर धुंधला होता जा रहा है। प्रभु, हम ऐसे लोग हैं जो आपके साथ संबंध में आना चाहते हैं पर हमारी परिस्थितियां हमको आपसे दूर कर देती हैं। हम ऐसे लोग हैं प्रभु जो हमारे चरित्र का विकास नहीं हो पा रहा है। प्रभु, हमारे पास में अनुभव की कमी है। प्रभु, हमारे पास में विशेष वरदान का अभाव है। आज हम आपसे विनती करते हैं, हमारी सहायता कीजिए, हमें आशीष दीजिए कि हम आपके विशेष वरदान से भरकर आपके लोगों की सेवा कर सकें। उत्साह और प्रेरणा और आशा और उम्मीद और भरोसा और साहस और हिम्मत के लोग बन सकें। हमारी मदद कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। डाउनलेस पुलपिट के मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद, भाई जोएल के लिए और उनकी टीम के लिए धन्यवाद। जितने लोगों ने आज इस संदेश को सुना, सबको आशीष दें। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवित और सामर्थी प्रभु हैं और आपके अनुग्रह से हम यूसुफ के समान अपने जीवन में कठिनाइयों के बीच, परिस्थितियों के बीच सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। दुर्घटना और त्रासदी के बीच जयवंत हो सकते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you so much for listening to me today. I pray that God will bless you as you continue to reflect on His word. Let me say the benediction and then we will close. अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे, आमीन। Thank you. God bless you.